हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि व्हाट इज़ दिस वीडियो ऑल अबाउट। दिस इज़ अ मेजर लाइफ अपडेट जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। एंड या आई हैव क्विट माई जॉब फाइनली एंड इट्स बिन अराउंड 2.5 months के मैंने रिज़ाइन किया एंड माई लास्ट वर्किंग डे वॉज समवेयर लास्ट वीक. And last 2 months I've been thinking whether I should make this video or not, share this life update with you guys or not. Yes, if let me just go along with the flow types for the simple reason कि जब भी आप लाइफ में कुछ नया करते हो, कोई मेजर चेंज लाते हो अपनी लाइफ में, कोई रिस्क लेते हो, then you always scared कि पता नहीं कैसे whether it will work out or not. एंड द मोर पीपल यू टेल एक वो एडेड प्रेशर सा फील होता है बिकॉज देन आई डोंट नो लाइक इफ इट एक्चुअली हैपन्स और नॉट, बट यू फील के देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ स्क्रूटिनी कि क्या हो रहा है, हाउ आर थिंग्स प्रोग्रेसिंग एंड ऑल ऑफ दैट वाली फीलिंग, एक मेंटल साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है. एंड सो आई वॉज थिंकिंग के लेट इट बी एंड देन इवेंचुअली अगर कभी मुझे मन किया, इफ आई फील कंफर्टेबल आई विल शेयर दिस डिटेल. But then one thing which I realized was that a lot of you who follow me are actually working moms. I share my working day schedules with you, routines with you. आप लोग मुझसे relate करते हो on so many levels. You see, how I'm managing things, yeah, not being able to manage things. I share my real-time experiences. And it would be unfair if I would just skip this major detail of my life and move on and keep on making videos. Plus, obviously the fact that I am also making this video for myself today because I've taken this very very big decision which is like huge for me. I don't know ऐसा लगे या ना लगे, but मेरे लिए it's a big decision. And now that I'm starting off with something new, I know there will be days of self-doubt सबको होते हैं, and this video would be a reminder. I can come back to this video on days when I have self-doubt to know the exact reasons why I quit and where I was coming from. क्या बच्चों की वजह से लिया, कोई और वजह से लिया, all of that I'm going to share in this video. Intro ही इतना लंबा है, so this video is going to be very very long क्योंकि I'm going to start from like the early days of my career, yeah, in fact even before that, क्योंकि back story जो है is a little important to help you understand why and what decision I have made. The initial part of the video might seem like कि मैं बहुत सारा boast कर रही हूँ, मैंने ये किया था, वो किया था, this is what I had achieved at this age, and all of that is going to be there in this video. So थोड़ा सा narcissist भी लग सकता है in the initial part. So if you are not able to relate to it, please feel free to drop out. But yeah, for everyone else, let's just begin. So basically I come from a very middle class background and a very educated middle class background. यानी मेरे मम्मी पापा दोनों they were working. In fact मम्मी पापा क्या, यानी if I go one level up, both my grandmothers were also working, and you can imagine in their 50s 60s वाले एरा में they were working women, which is like huge. उस टाइम पे होता नहीं था. मेरी मौसिया, मामिया, चाचिया, everyone that I know around me has always been working. So I come from a setup where career was a very important part of our lives, and it was like an unsaid thing कि हाँ ये तो करना ही है, यानी everyone has to study and to the best of their capabilities. ऐसा नहीं कि तुम्हें यही बन जाना है because you are of an X gender or you come from an X background, but you have to study to the best of your capabilities and do whatever you're capable of to make a career for yourself. So I came from that mindset and that kind of a background. मेरे बहुत सारे कज़न्स थे क्योंकि मम्मी पापा के काफ़ी भाई बहन थे, एंड आई वॉज फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कज़न्स, यानी सबके जो पहले पहले बच्चे होते हैं वो. सो आई वॉज इन द ओल्डेस्ट, बट या वन ऑफ द ओल्डेस्ट, एंड आई वॉज द फर्स्ट वन इन माई फैमिली हु एक्चुअली टुक एडमिशन इन इंजीनियरिंग, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी, यानी एटलीस्ट मेरे फैमिली में, बिकॉज एवरीवन यूज्ड टू डू इधर यानी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए ट्राई करते थे या आर्ट्स कॉमर्स ये सब कर लिया, एंड दे वुड डू लाइक अ CA और समथिंग लाइक दैट. एंड आई वेंट ऑन टू डू माई इंजीनियरिंग एंड दैट टू फ्रॉम द बेस्ट कॉलेज इन गुजरात, लाइक द मोस्ट सॉट आफ्टर कॉलेज इन गुजरात, जो कि बहुत बड़ा डील था एट दैट पॉइंट. एंड आई डोंट नो वेदर आई वॉज इंटरेस्टेड इन इट और नॉट. आई वॉज स्टिल टू यंग टू अंडरस्टैंड दैट, बट मुझे पता था कि कुछ अच्छा हो रहा है, सब खुश है. My parents were obviously very happy. And then when I started doing my engineering, when I was 19 years old probably, यानी second year के बाद जब third year शुरू होता है engineering, उससे पहले I got placed
with a company which was an MNC, यानी that was again like a very big deal हमारे वहाँ पे हमारे सेटअप में कि पढ़ाई ख़त्म भी नहीं हुआ, अभी 1.5 साल बचा है पढ़ने का, एंड यू नो यू गेट प्लेस्ड एंड दैट टू विथ लाइक अ अमेरिकन कंपनी विच वाज लाइक अ बिग डील. यानी ऐसा सुना नहीं होता था, लोग ग्रेजुएशन करके वहीं जॉब्स ढूंढते थे एंड ऑल ऑफ दैट. नाउ इट्स वेरी कॉमन बट इन दैट टाइम इट वाज नॉट सो कॉमन एंड दे वर पेइंग अ वेरी गुड सैलरी बाय दैट दो स्टैंडर्ड्स उस टाइम पे. So again it was something like wow, I have arrived in life and I have been placed in one of the first companies which came on campus and I just took that job and I joined that company after I completed my engineering. And like I said, they were paying me good money. I was in Pune. घर से बाहर जाने वाले भी उस टाइम पे बहुत बच्चे नहीं होते थे, सब वहीं रह के पढ़ाई करते थे, वहीं पे कोई जॉब्स मिल जाती थी. So there were a lot of firsts that happened you know with me. And but 8 महीने मैंने काम किया and in those 8 months I realized that I was not cut out for IT. It was an IT company that I was working for and I was a people's person. यानी मुझे you know customer interactions, people interactions इन सब में ज़्यादा इंटरेस्ट था and talking to a computer was not something जो इतना मुझे इंटरेस्टिंग लगा उस पॉइंट पे. And so I decided कि बस अब मुझसे ये नहीं होगा, मैं MBA करूँगी. And like so much so that I didn't even want to wait for 1 more year. तो उस साल में admissions almost ख़त्म हो गए थे, but I was like जहाँ मिल रहा है let me do it. So I picked up a college which was a decent college, बुरी college नहीं थी, but it was not like an Ivy League IIMs type की college. And I started doing my MBA. And again by the time I had completed the first year of my MBA, कैंपस पे आने लगी कंपनीज एंड यू नो होता है कि इवन इफ़ यू आर इन अ मीडियोकर कॉलेज या यू नो Tier 1 कॉलेज, आपकी वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज आएगी, उसमें से कुछ कंपनीज होगी विच विल बी रियली हाई पेइंग एंड बाकी सारी एवरेज या बिलो एवरेज होगी. तो यू नो इफ़ यू गेट इनटू दोज टॉप फ्यू कंपनीज यू विल स्टिल बी एट पार विद जो आईवी लीग के लोग होते हैं, IIMs या यू नो वहाँ से पास आउट होते हैं, उनकी लेवल की तुम्हें जॉब मिलेगी. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विथ मी. आई गॉट प्लेस्ड विद द फर्स्ट कंपनी विच केम ऑन कैंपस. इट वॉज पेइंग वेरी गुड मनी. यानी 1 साल के अंदर माई सैलरी सडनली बिकेम ऑलरेडी जो थी उससे 3-4 गुना की सैलरी पे आई गॉट हायर्ड. इट वॉज अ ग्रेट पे मास्टर, अ वेरी वेरी गुड कंपनी टू वर्क विथ. And it was all like a dream for me कि you know I'm just doing one after the other things and सब कुछ is falling into place खुद ब खुद. So I never really put any thought into the fact कि you know is this what I really want या things like that. And you know when you come from a small town and a middle class family setup, like getting jobs in big companies like this is a big deal. बहुत सारे perks होते हैं when you work with big companies like this, like staying in 5 stars and traveling and parties in 5 stars and all of that mattered to me at that point from where I was coming. And to top it all, my first job was like a dream job. यानी मेरा boss जो था वो excellent, यानी I haven't seen a person like that in my entire life. उस दिन से लेके आज दिन तक he was the most amazing boss anyone could ever get. I had a great team. मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता था. I used to make a lot of money. यानी मेरी salary already I was earning a good amount, but I was making incentives which were way more than my salary also. So at that age, you know, when you're in your early 20s, something like this is the thing that you want in life, right? कि हाँ भैया इतने पैसे मिल रहे हैं and you getting so much job satisfaction and everything. I was not married then. So I used to work like 15-16 hours a day. यानी I remember times कि रात को नींद नहीं आ रही, 1:30-2 बजे है, मैं और मेरी रूममेट दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे. So 2 बजे तक नींद नहीं आ रही, देन भैया सडन लाइक कि छोड़ो अब क्या सोना है, लेट्स जस्ट गो टू ऑफिस. और रात को हम 2 बजे जाके फिर ऑफिस में काम करना शुरू करते थे. सुबह 7 बजे तक काम करते थे एंड 7 बजे वहाँ नीचे ना एक मैकडोनल्ड्स था. इफ यू आर फ्रॉम मुंबई यू वुड नो निर्लॉन नॉलेज पार्क, वहाँ पे एक मैकडोनल्ड्स था एंड मैकडोनल्ड्स हैड स्टार्टेड 7 o'clock ब्रेकफास्ट मेन्यू उस टाइम पे. सो वी वुड जस्ट गो नीचे 7 बजे वो ब्रेकफास्ट मेन्यू से ब्रेकफास्ट करते थे एंड देन वी वुड कम बैक एंड चेंज इन द ऑफिस का वॉशरूम एंड देन बाय द टाइम 9-9:30 को सब आने लगते थे, वी वुड बी अगेन बैक टू वर्क. सो दोज वे द काइंड ऑफ आवर्स आई वॉज पुटिंग इन, दैट वॉज हाउ मच मुझे अपना काम अच्छा लगता था, जॉब अच्छा लगता था. एंड लाइक आई सेड एवरीथिंग वॉज अ ड्रीम. एंड देन आई गॉट मैरिड एंड आई मूव टू दिल्ली. मैं सेम कंपनी में काम कर रही थी, सेम रोल था मेरा, बट
ऑब्वियसली व्हेन यू चेंज सिटीज़, आपका बॉस चेंज होता है, टीम चेंज होती है, हर सिटी का एक वर्किंग एनवायरनमेंट होता है। बिकॉज आई वॉज इन अ कस्टमर फेसिंग रोल ऑलवेज, तो आप जिन लोगों से इंटरेक्ट करते हो उनका हर सिटी में टेम्परामेंट अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। सो ऑब्वियसली जो मेरा फर्स्ट जॉब था उसका बेंचमार्क भी इतना हाई था कि ऑब्वियसली वंस आई केम हियर, धीरे धीरे करके नथिंग कुड मैच दैट बेंचमार्क, राइट। तो फिर आई स्टार्टेड हैविंग दोज फेजेस where I started thinking कि यार क्या मुझे यही करना है, is there anything better that I can do, and things like that. And obviously ये सारे छोटे छोटे phases थे जो हर किसी के, हर working person की life में आते हैं, and they came to my life and they went away and then they came again and went away, ऐसे ही होता था। बट लाइक एज यू ग्रो इन लाइफ फिर बहुत सारी और चीज़ हो जाती है, आपकी फैमिली हो जाती है, यू हैव EMIs टू पे एंड देन यू हैव किड्स एंड देयर स्कूल फीस। तो हर बार दिस थॉट वुड कम एंड देन यू वुड बी लाइक के अरे नहीं यार सब कुछ सही तो चल रहा है, लाइक यू आर ग्रोइंग इन योर करियर, यू आर मेकिंग सो मच मनी, देन छोड़ो, व्हाई डू यू वांट टू थिंक अबाउट समथिंग एल्स। सो विथ मी वॉट हैपेंड इज़ कि ये फेजेस आने लगे थे थोड़े बहुत व्हेन आई केम टू दिल्ली, बट विथ टाइम दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड उसकी इंटेंसिटी बढ़ती गई। एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग अ लॉट, बैक ट्रैकिंग अ लॉट, एंड देन आई रियलाइज्ड कि मैंने बहुत सारी डिटेल्स अपनी लाइफ की मिस कर दी थी बिकॉज एवरीथिंग वॉज गोइंग सो स्मूथली दैट आई डिडंट पे अटेंशन टू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आई यूज टू डू। लाइट गई, सो लाइटिंग में चेंज होगा। एनीवेज, सो व्हेन आई सैट डाउन टू थिंक आई रियलाइज्ड कि जब मैं 17 साल की थी, I had listed my first product for reselling, which was like junk jewelry आती है ना, on eBay. Now imagine this is 15 years back at least. एंड तब ना अमेजोन होता था ना कुछ होता था, eBay का किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, इंटरनेट वॉज ऑल्सो सो न्यू इन इंडिया। एंड एट दैट टाइम पता नहीं मुझे कहाँ से ऐसा दिमाग में आया था कि दिस इज समथिंग विच कैन मेक मी मनी एंड आई कैन डू समथिंग, रीसेलिंग कैन बी अ थिंग। सो आई यूज्ड टू लिस्ट ऑल दोज ज्वेलरी पीसेस ऑन eBay एंड सेल देम एट अ हायर प्राइस, मैंने जो खरीदा है उससे। एंड ऑब्वियसली देन बाकी तो का साथ में मैं कर ही रही थी पढ़ाई एंड ऑल, सो देन दैट टुक अ फ्रंट सीट और उसको मैंने छोड़ दिया। देन व्हेन आई वेंट ऑन टू डू माई MBA, सो आई यूज्ड टू स्टे इन अ हॉस्टल एंड हॉस्टल का क्या होता है कि फीस एंड एवरीथिंग इज़ पेड, बट खाना हमारा खुद का होता था, लाइक वी हैड टू बाय आवर ओन फूड, मैनेज आवर ओन फूड। एंड मेरे घर से ना 5,000 रुपये हर महीने मेरे पापा मुझे देते थे। एंड 5,000 क्या होता है लाइक इन अ सिटी लाइक मुंबई, इफ़ आई हैव टू हैव 2 meals, बाकी सब भूल जाओ। अगर 100 रुपये का एक टाइम का खाना है, 100 रुपये का दूसरे टाइम का खाना है, तो लाइक 200 रुपये के हिसाब से 6,000 तो सिर्फ खाने के ही होते हैं। बट ऑब्वियसली वंस यू स्टार्टेड अर्निंग यू डोंट वांट टू गो बैक एंड से कि नहीं मुझे और पैसे दो एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई हैड सेव्ड 40,000 रुपीज़ मेरी जो फर्स्ट 8 महीने मैंने IT जॉब की थी उससे। सो आई स्टार्टेड स्टॉक ट्रेडिंग या शेयर ट्रेडिंग टू अर्न छोटा छोटा अमाउंट विच वुड वर्क एज अ पॉकेट मनी। कभी कुछ खरीदना है, कभी बाहर पार्टी के लिए जाना है, तो दैट वुड वर्क फॉर मी। एंड ऑब्वियसली यानी मेरी नॉलेज इन टर्म्स ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग वाज ज़ीरो, यानी इट वाज जस्ट अ तुक्का एंड इट वाज वर्किंग फॉर मी, तो मैं कर रही थी काफ़ी टाइम तक एंड आई वाज अर्निंग। बट दैट्स व्हेन आई फर्स्ट रियलाइज कि आई कुड एक्चुअली मेक मनी without having a job also. There are so many other things which I can try and I can make money from there also, and if something interests me then वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। and eventually खैर उसमें भी I lost money, there was a big recession which came at that time and all of that, but that was where I learned my first financial lessons from। यानी आज आप देखते हो मैं बहुत सारे financial चीज़ों के बारे में बात करती हूँ, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ था and I am very thankful to that phase of my life। but the point is कि यानी I was doing something of my own and trying to earn my own money। देन आई वॉज डूइंग एन इंटर्नशिप इन माई MBA जो कि मैं एक बैंक के साथ कर रही थी, एक्सिस बैंक के साथ। एंड मुझे उस टाइम पे ऐसा दिमाग में आइडिया चल रहा था, मैंने ना बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सिटी जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस होते, तो गवर्नमेंट ऑफिस में ना अंदर ही क्रैच और ये सब होता है बच्चों के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ के। लेकिन व्हेन आई केम टू अ सिटी लाइक पुणे, आई रियलाइज देयर आर सो मेनी वर्किंग पेरेंट्स हियर एंड प्ले ग्रुप, क्रैच, ये सारा बहुत नया कंसेप्ट था उस टाइम पे। सो आई थॉट कि वाई डोंट आई ओपन अ चेन ऑफ सच प्ले ग्रुप्स, एंड कोइंसिडेंटली अभी मेरी फैमिली में और कोई करता है वो बिजनेस एंड इट्स डूइंग रियली वेल। बट उस टाइम पे आई हैड दैट आइडिया एंड आई वुड एक्चुअली सिट इन द केबिन ऑफ दैट बैंक, क्योंकि उस टाइम पे ना मोबाइल फ़ोन कॉल्स इतने सस्ते नहीं होते थे, दे यूज्ड टू चार्ज 1 रुपी अ मिनट और समथिंग लाइक दैट, और इतने पैसे होते नहीं थे। सो जब भी मैं इंटर्नशिप के लिए उनके ऑफिस में जाती थी, लाइक इन द लंच ब्रेक आई वुड सिट इन द केबिन, वहाँ पे लैंडलाइन होता था, आई यूज्ड टू यूज़ दैट, आई यूज्ड टू कॉल डिफरेंट प्ले ग्रुप्स टू अंडरस्टैंड कि कितनी
फीस चलती है, क्या टीचर्स की सैलरीज होती है, एंड यू नो डू माई प्राइमरी रिसर्च. एंड मैंने पूरा बिजनेस प्लान बनाया था एंड आई थॉट आई डू दिस इवेंचुअली वंस आई हैव अ लिटिल मनी. बट फिर ऑब्वियसली आई स्टार्टेड वर्किंग एंड दैट टुक अ बैक सीट. द पॉइंट इज़ कि मेरे दिमाग में ऐसे कुछ ना कुछ आता रहता था विच आई ऑलवेज वांटेड टू ट्राई. एंड देन इवेंचुअली व्हेन दिल्ली आने के बाद मुझे वो फेज़ आने लगा जहाँ पे यू नो कभी कभी जॉब सेटिस्फैक्शन उतना नहीं होता था. देन दिस थिंग केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. आई अपलोडेड माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो. यानी आप मेरा ये चैनल देख रहे हो और जो पेरेंटिंग वीडियोज़ मैं बना रही हूँ तो पिछले 3 साल से बना रही हूँ. बट इफ़ यू गो बैक एंड लुक एट माई ओल्डेस्ट वीडियो, द फर्स्ट वीडियो दैट आई पोस्टेड वॉज समवेयर इन 2014 या 15, अगैन जब यूट्यूब वॉज नथिंग इन इंडिया. यानी किसी ने सुना भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है कि वीडियो अपलोड करो. आई वॉज अपलोडिंग सम ट्रैवल वीडियोज़ देन. तो मेरे अंदर हमेशा से वो कीड़ा था कि यू नो आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माई ओन, आई वांट टू क्रिएट समथिंग ऑफ माई ओन एंड ऑल्सो अर्न इन द प्रोसेस. सो यूट्यूब ट्राई किया था, बीच में आई वांटेड टू ओपन अ कॉफ़ी शॉप. आई डिड एवरीथिंग, लाइक रेंट पे प्लेस तक फाइनल हो गई थी एंड देन आई गॉट प्रेग्नेंट विद अथर, सो आई ड्रॉप दैट आइडिया. But yeah, so somewhere when I started putting a thought to all of this, I realized कि there is a small part inside me which wants to do something of their own, जो अपने आप को सिर्फ एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल की तरह नहीं देखता. एंड देन इन द लास्ट 2 years सो मच चेंज. यानी मैंने यूट्यूब करना शुरू किया, मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू किए एंड आई स्टार्टेड एन्जॉइंग इट सो मच. यानी उसमें से मुझे हार्डली कुछ पैसे मिलते थे. लाइक आई वॉज एट अ वेरी हाई पेइंग जॉब, आई वॉज हेडिंग अ रीजन. तो मेरे लिए दिस वॉज मोर लाइक अ साइड थिंग जो मुझे मज़ा आ रहा है और मैं कर रही हूँ. लाइक इफ़ यू सी इन सो मैनी ईयर्स मेरे वीडियोज़ पे एक लिमिटेड व्यूज़ ही होते हैं एंड आई कुड सी दैट. एंड किसको ग्रोथ अच्छा नहीं लगता. आई ऑल्सो न्यू कि देयर वेर अ फ्यू वीडियोज़ विच इफ़ आई डिड तो वो डेफिनेटली वायरल होगा एंड आई अट्रैक्ट ऑडियंस. बच्चे को गोरा कैसे बनाते हैं, जेंडर प्रेडिक्शन रिलेटेड थिंग्स, एंड ऑल ऑफ दोज वीडियोज़ गार्नर अ लॉट ऑफ व्यूज़. लेकिन दैट वॉज समथिंग दैट आई डेंट बिलीव इन और मुझे ज़रूरत नहीं लगी वो करने की, क्योंकि दिस वॉज नॉट माई मेन सोर्स ऑफ इनकम. दिस वॉज समथिंग विच आई वॉज डूइंग प्योरली बिकॉज आई वॉज एन्जॉइंग इट. एंड तभी मैं इतने लंबे टाइम तक कर पाई डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि माई ग्रोथ हैज़ बिन लिमिटेड. एंड देन इन द लास्ट 2 years मैंने वो वर्कशीट वाला पार्ट एक्सप्लोर किया थैंकफुली एंड दैट स्टार्टेड रोलिंग. सो मच पॉजिटिव फीडबैक स्टार्टेड कमिंग इन. वन थिंग लेड टू द अदर एंड मैंने रियलाइज़ किया कि आई एम रियली एन्जॉइंग दिस बिट. यानी एक डिज़ाइन करना प्रोडक्ट, उसको फिर लॉन्च करना, उसका पूरा यू नो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग एंड देन द कस्टमर फीडबैक, एवरीथिंग. लाइक उससे मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिलने लगी कि मैंने फिर सीरियसली कंसिडर करना शुरू किया कि शुड आई एक्चुअली take this up full time and leave my job behind. But like I said, money always kind of comes into picture, especially अगर आप इतने टाइम से काम कर रहे हो, financially independent हो, अपने घर में आप एक मेजर financial या you know equal financial contributor हो, आपके बच्चे हैं, उनकी स्कूल की फीस जा रही है, EMI जा रही है, then you always think कि नहीं यार, you're getting like a steady source of income and what if this thing doesn't work out. But what happened was 2.5 महीने पहले we were all hit by COVID. आई एम श्योर यू गाइज नो. यानी मैंने व्लॉग भी किया था उस टाइम पे एंड यानी मुझे, निशित को और मीरा को कोविड था, अथर को नहीं था. एंड आई वॉज सो वरीड कि अथर अलग रूम में कैसे रहेगा, हाउ विल ही मैनेज. एंड उसको पानी पिलाने से लेके शर्ट के बटन लगाने तक का सारा काम मैं करती हूँ उसका, या निशित करता है उसका. लाइक ही इज़ डिपेंडेंट ऑन अस फॉर सो मच. ही इज़ जस्ट 4.5 years old. तो आई वॉज लाइक कॉन्स्टेंटली वरीड. और मैंने like what I saw in those 3-4 days was a boy who was doing everything by himself. हंसते हंसते, यानी एक भी बार उसने कंप्लेन नहीं किया या रोया नहीं कि मैं कैसे करूँ. हमसे वीडियो कॉल पे बात करते करते वो सो जाता था. मैं रूम के बाहर से देखती थी, वो अंदर अपने 1 घंटा लगा के बटन्स बंद करके कपड़े चेंज कर लेता था, जितना समझ आता था खाना खा लेता था. एंड आई सडनली रियलाइज कि ही इज़ ग्रोन सो मच. यानी where did my 4-year-old boy just go? एंड ऐसा नहीं है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ वर्किंग पर्सन, इट्स नेवर बीन अ केस जहाँ पे अथर हैज़ नॉट बीन माई प्रायोरिटी. जो मैं सारी और चीज़ें करती हूँ, फॉर दैट आई हैव कॉम्प्रोमाइज माई स्लीप, माई सोशल लाइफ एंड यू नो एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग. बट आई मेड श्योर कि अथर इज़ ऑलवेज माई प्रायोरिटी एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आई हैव मैनेज दैट सो वेल. सो मुझे कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं काम कर रही हूँ उसकी वजह से अथर की लाइफ में कोई वॉइड होगा. एंड आई स्टिल डोंट फील दैट. बट व्हाट आई रियलाइज्ड इन दैट मोमेंट वाज कि मेरी लाइफ में एक वॉइड होने वाला है वेरी सून, बिकॉज दिस बॉय इज ग्रोइंग अप सो फास्ट एंड आई हैव जस्ट 3-4 more years in which
वो इतना इंडिपेंडेंट हो जाएगा कि he'll hardly need me. He'll have his own life, and Meera will also साथ साथ में grow so much. And Meera is my second and the last child, right? So this is like my last chance to soak in as many moments of happiness as I can for myself. बच्चों के लिए तो मैं कर ही लूँगी काम के साथ साथ भी सब कुछ, लेकिन मुझे अपने लिए वो टाइम चाहिए था where I have the time to sit back and enjoy those moments, So that was like the final push. I was like कि मैं किस चीज़ का यानी वेट कर रही हूँ. I have ideas which I'm working on, जो ऐसा नहीं है कि they are not making any money. They are making money. Obviously मेरी सैलरी जितने नहीं शायद, but still I have so many more ideas which I want to execute. And then I have my kids, जिनके साथ के moments और memories को मैं अपने लिए save करना चाहती हूँ, store करना चाहती हूँ. I have a good family support. When you've worked for so long, आपके सेविंग्स और सब कुछ भी उतने हो जाते हैं कि आप थोड़े से कंफर्टेबल प्लेस में आ जाते हो. सो आई वॉज लाइक कि सिर्फ इसलिए कि हर महीने मेरी सैलरी नहीं आएगी ये सोच के फॉर मी टू कीप ऑन वर्किंग इज़ नॉट द राइट थिंग. आई एम गेटिंग वे टू मैनी साइंस के मुझे इस टाइम पे वो ट्राई करना चाहिए जो मैं करना चाहती हूँ, एंड आई शुड जस्ट टेक अप दिस अपॉर्चुनिटी. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड, लाइक एक रात को बैठ के बस मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है, एंड दूसरे दिन सुबह मैंने अपने बॉस को कॉल किया एंड आई सेड आई वांट टू रिज़ाइन, एंड आई रिज़ाइन. यानी आई वॉज इन मार्च में हमारा अप्रेजल साइकिल होता है, तो इंक्रीमेंट, इंसेंटिव्स, एवरीथिंग वॉज ड्यू. आई डिडंट थिंक अबाउट एनीथिंग, बट आई जस्ट क्विट. एंड या आई डिसाइडेड कि मैं जो मैंने चीज़ें डिसाइड की है, आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दोज थिंग्स एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1.5-2 years. आई डोंट नो हाउ थिंग्स विल गो फ्रॉम हियर. आई डोंट नो कि कितना टेक ऑफ करेगा, किस लेवल तक मैं पहुंचा पाऊंगी इसे, बट आई रियलाइज कि अगर इतने सारी साइंस मिल रही है, इफ आई डोंट ट्राई दिस आई विल रिग्रेट इट, एंड आई डोंट वांट टू रिग्रेट इट. और 12 साल मैंने काम किया है, बहुत काम किया है, बहुत मेहनत की है. इफ़ आई कांट गिफ्ट माई सेल्फ दोज 2 years टू डू थिंग्स विच गिव मी इमेंस हैप्पीनेस, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना जो मैंने अभी तक काम किया है उसका. सो या दैट्स वेयर इट इज़. बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स है. सो जो मेरा वर्कशीट बिजनेस है, आई वांट टू स्केल इट अप. एज ऑफ नाउ हार्ड कॉपीज और 4 लिमिटेड प्रोडक्ट्स है जिसके थ्रू वी आर ऑपरेटिंग. आई एम नॉट डूइंग एनी मार्केटिंग, जो आप लोग में से ही आई कीप ऑन गेटिंग ऑर्डर्स विच आर लाइक अभी के लिए मेरे लिए अच्छा खासा था, एंड इट वॉज रोलिंग. आई वॉन्ट टू स्केल अप दैट बिजनेस, यानी नॉट ओनली इन द फिजिकल फॉर्म में प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म लेवल पे एक लर्निंग प्लेटफॉर्म पे काम करना चाह रही हूँ, वेर आई हैव अ लॉट मोर रिसोर्सेज विच कैन हेल्प पेरेंट्स. So that is something in the pipeline. एक दो passion projects है which are not like money oriented या business oriented, but I wanted to do for the longest time. I'm working on those, and hopefully एक तो next महीने you should be able to see. So I'm very excited for that, and obviously the time that I'm going to spend with my kids is something that I'm really looking forward to. So yeah, ये है मेरे plans, and my work has been my identity for the longest time. यानी मेरा social circle, मेरे work colleagues थे, मेरा comfort level ये था कि I'm getting a salary every month. My pride was the fact that I'm an equal partner to Nishit in running the household, as much as he's an equal partner to me in everything else that I do. But यानी डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट आई हैव टेकन दिस डिसीजन. कभी कभी थोड़ा सा डर लगता है, इट्स अ लिटिल स्कैरी, बट द गुड पार्ट इज़ कि मुझे स्लीपलेस नाइट्स नहीं होती उसकी वजह से. इफ़ आई स्टे अवेक इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अरे कल क्या करना है, ये चीज़ें रह गई, ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट आई एम वर्किंग फॉर, दैट एक्साइटमेंट कीप्स मी अवेक, विच इज़ अ गुड थिंग. मैंने जब ये वर्कशीट बिजनेस का पार्ट सोचना शुरू किया था, तब इट वॉज जस्ट लाइक अनदर प्लान दैट आई वॉज मेकिंग, एंड आई एम ग्रेट एट मेकिंग प्लान्स. मैं सब कुछ डिटेल में जाके सब कुछ करती हूँ, बट एग्जीक्यूशन लेवल पे आके मैं ना बहुत बार अटक जाती हूँ. एंड दिस टाइम निश्चित लाइक विदाउट सेइंग डिड एवरीथिंग फ्रॉम द एग्जीक्यूशन पर्सपेक्टिव. यानी मैं सिर्फ बोलती थी कि यार ये तो यहाँ अटकेगा, ये कैसे होगा, एंड देन ही वुड जस्ट मेक इट हैपन. यानी आज तक वही ये सब करता है. मटीरियल प्रोक्योरमेंट, लॉजिस्टिक्स, बहुत सारी चीज़ें होती है व्हेन यू आर रनिंग अ बिजनेस विच यू डोंट सी, एंड आई वॉज एबल टू डू इट ओनली बिकॉज निशित काइंड ऑफ did all of that for me without me saying, and he still does it. So yeah, that's also sorted. So I have nothing actually to stop me. I should give it a try is what I thought. And so finally, yes, I'm taking a break from not work but from my corporate life. 1 साल 2 साल 3 साल, let's see how it goes, how long it goes for. Obviously real world में there are a lot of commitments that you have. Like I said, बच्चों का एक future आप plan कर रहे हो, बहुत सारा present में भी उनको you want to maintain a particular lifestyle and things like that. So yeah, eventually maybe if things don't work out, I don't know, I might just go back, but maybe things will work out. Let's see. But I want to give it a try, and a honest try.
और मैंने इतना सब कुछ बोल ही लिया है, तो वाइल आई एम जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, तो अभी बोलना तो नहीं बनता, इट माइट जस्ट साउंड लाइक एन ऑस्कर speech, but let me just say it. I really want to thank you guys, क्योंकि a lot of you have stuck by me in the last 3 years. यानी मेरे views, मेरे growth was decimal. Despite of that, I kept on doing things, kept on making content that I believed in, for the simple reason कि आप लोग जो comments करते थे, DMs करते थे, you know, all the love and support that you showed through those channels always made me feel कि हाँ ठीक है, आई एम डूइंग डिफरेंट थिंग्स, आई एम नॉट एग्जैक्टली फॉलोइंग कि भैया ये वायरल हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, बट आई एम डूइंग थिंग्स विच आर एडिंग वैल्यू टू समवंस लाइफ, एंड दैट केप्ट मी गोइंग, एंड दैट हैज़ ओनली बीन बिकॉज ऑफ द सपोर्ट एंड द काइंड वर्ड्स दैट यू गाइज ऑलवेज यानी विदाउट आस्किंग कीप ऑन यू नो शेयरिंग विथ मी. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. करते रहना, मुझे अब और ज़रूरत होगी. एंड ऑब्वियसली माई किड्स, जिसकी वजह से मैंने पूरा ये पेरेंटिंग का यू नो वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया, एंड सो मैनी थिंग्स स्टार्टेड इंटरेस्टिंग मी. इट्स द फाउंडेशन ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग राइट नाउ एंड आई एम गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 1 or 2 years. एंड निशित, जिसकी वजह से मेरे जो ख्याली पुलाव थे उसने मुझे मोटिवेट किया उसको पकने रखने के लिए चूल्हे पे. सो आई एम हियर बिकॉज ऑफ दैट ओनली. एंड माई ब्रदर एंड माई भाभी, जो कि दुनिया के दूसरे पार्ट में, सिटिंग इन अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे वॉच ऑल माई वीडियोज़, जबकि दे आर नॉट इवन पेरेंट्स. एंड मेरे यानी हर चीज़ में वो लोग दे गो थ्रू इट, दे गिव मी टिप्स एंड ऑल ऑफ दैट, टेक आउट टाइम फॉर दैट विदाउट आस्किंग. मैं मिस आउट कर जाती बहुत सारी चीज़ें, वो लोग बहुत डिटेल में देख के मुझे इनपुट्स देते हैं. सो दैट्स लाइक समथिंग दैट आई कुड ओनली ड्रीम ऑफ हैविंग. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, माई पेरेंट्स, जो मुझे पता है, नोइंग दैम इन द लास्ट 2 months सिंस आई टुक दिस डिसीजन, कि बहुत यानी दे मस्ट बी शिट स्कैर्ड, बट नेवर वंस हैव दे टोल्ड मी इन द लास्ट 2 months कि क्यों किया ऐसा, तुमने नहीं करना चाहिए था. ऑल दे केप्ट ऑन डूइंग वाज सेंडिंग मी फ्लावर्स एंड पॉजिटिव मैसेजेस एंड ऑल ऑफ दैट. सो इतना सारा सपोर्ट और प्यार है मेरे पास, सो ट्राई करना तो बनता है. दैट्स व्हाट आई डिसाइडेड टू डू. एंड या, दिस इज़ माई स्टोरी. अगर इतना लंबा वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गिव इट अ लाइक एंड आई सी यू ऑन द अदर साइड. बाय बाय.